जिस दिन अपनी किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। जी हाँ, मैं हूँ आपके सामने डॉक्टर मनीष कुमार ससी। आज हम लोग वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोजिशन है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसके अंतर्गत जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट्स है, थॉट्स हैं, वो इसके अंदर क्या क्या समाहित हैं, देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर फेयर्स आल्सो नोन बाय हिज पेन नेम भानु सिंह ठाकुर and also known by his subsequents Gurudev, Kavi Guru and Vishnu Kavi, was a polymath poet, musician, artist and Ayurveda researchers from the Indian. When we talk about born 7th May 1861 in Kolkata and died 7th August 1941 Thakurbadi, Kolkata. Tagore, the recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913, first Asian, was one of the greatest lyric poets of the world. He was also a noted dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, national builder, and founder of an international university of Shanti Niketan. He wrote primarily in Bangla, but renounced a large number of his own works into English and in the process wrote them anew. Such works include गीतांजलि। कहा भी गया ना, बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश, मतलब तमीज़ और परवरिश को हम लोग यहाँ सीखते रहते हैं। टैगोर ए पोएट, ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक्टर, patriot, educationist and prophet. Tagore is a great phenomenon in the Indian literature. Renaissance. His main themes are man, God, nature, love, death, freedom, childhood, social evil, and patriotism. He is a classical poet in his themes. And when we talk about many more themes in his relations, in his love for God, in his refinement of language and his taste, he has also been hailed as a romantic and mystic poet. His simplicity is full of grandeur and serenity. When we talk about in this poem, the whole poem is a single complex sentence whose principal class in the last line. We also search some views. जैसे किसी ने कहा भी है ना कि ज़िंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है। अर्थात ज़िंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है। कुछ some important points we search out like some cues when we talk about Hitler and Nehru, both born in the same year 1889. When we talk about Indira Gandhi's born and Indira Gandhi's born and Russian Renaissance, both the same year 1917. When we talk about Gandhiji and Lal Bahadur Shastri, both birthdays 2nd October. And when we talk about this lesson,
Rabindranath Tagore and Motilal Nehru, both born the same year, 1861. Here we find out similarities. Hitler, Nehru, 1889, Indira and Russian, 1917, Gandhi and Lal Bahadur, 2nd October, Tagore and Motilal, also 1861. कहा भी गया है ना, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफ़र अनजानों ने, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, वो पढ़ाया सबक जमाने ने जो किताबों में दर्ज था। वाकई बहुत कुछ हम लोग यहाँ सीखते रहे हैं। मैं अपने पिताजी की एक स्मरण आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हुए कुछ चीज़ें बचपन से ही सिखाते रहे हैं। वो अक्सर कहते हैं, सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए बेटा, ये मुमकिन नहीं। ये ज़िंदगी है, पिता का घर नहीं। वाकई उनके दिए हुए सबक मैं अपने जीवन में आत्मसात करता रहता हूँ, और वो जहाँ भी हैं मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आशीर्वाद देते रहे। अब हम लोग आते हैं इस लेसन पर। इस लेसन की शमरी को समझते हैं। In this poem, Tagore presents the vision of an ideal social and moral order for his country. The poem is composed in the form of a prayer to God. The poet prays to God that his country should have fearless people who are free to acquire and spread knowledge. The country should not be divided into narrow domestic campus walls. In other words, people should be bound together by love and mutual understanding. In this ideal world of Tagore, people should be truthful in word and conduct. They should work hard to attain perfection. Death habits are the enemy of free thinking. In this ideal world, regions should not act like prisoners of customs and habits. In this world, prejudice should not come in the way of clear thinking. The poet prays to God that he should guide people on the path of proper thought and action. Such a world, according to the poet, in this freedom, heaven of freedom. The poet wants that his country should become the real heaven of freedom. एक चीज़ जो बचपन से मैंने सीखी है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं, खास करके मिरर के लिए, लोग आईना कभी ना देखते, आईने में चित्र की जगह यदि चरित्र दिखाई देता, तो लोग आईना कभी नहीं देखते। अब हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे गुरु अक्सर कहते थे कि बात करने के लिए वक्त और शब्द की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन की आवश्यकता होती है। आप बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करना कि वो फर्स्ट स्ट्रेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. वो कहते हैं इस स्टेंस के अंतर्गत कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसके देश में लोगों का मस्तिष्क भयमुक्त और आगे बढ़ने वाला हो, उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक ज्ञान उपलब्ध हो, देश के लिए सिर ऊंचा उठाकर आत्मसम्मान के साथ वो जीत सके, ऐसे वो देश की कल्पना करते हैं। सेकेंड स्टेंजा को हम लोग समझते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसके अंतर्गत कवि का ये कथन है
कि संकीर्ण और प्रादेशिक जो विचारधाराएं, बाधाएं हैं, जो संसार के लिए टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर देती हैं, संकीर्णता और प्रादेशिकता के ऊपर क्षेत्रवाद और जातिवाद से भी ऊपर एक उत्तम राष्ट्र के लिए हम सोचें। थर्ड स्टेंजा, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर tireless striving stresses its arm towards perfection। इस सब्सटेंस में हम लोग सीखते हैं, कवि कामना करते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोग सत्य बोलने वाले हों, उत्कृष्टता की प्राप्ति कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो सकती है, इस तरफ हम लगे रहें। फोर्थ स्ट्रेंजर, वेयर the clear stream of reason has not lost its way into the dreaming desert scent of dead habit। इसमें उनके जो सब्सटेंस हैं वो चाहते हैं कि पुरानी जो परंपराएं हैं, वो बाधाएं हैं, आदतें हैं, वो मार्ग से हट जाने चाहिए और उसके स्थान पर तर्कपूर्ण लॉजिकल जो विचार हैं वो हमारे सामने बिल्कुल दिखने चाहिए। फिफ्थ स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं, वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वेंडिंग थॉट एंड एक्शन। इस सब्सटेंस के अंतर्गत वो हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रार्थना से स्वतंत्र भारत के लोग जो विचार रखते हैं उस पथ पर अग्रसर हों, स्वतंत्र हमारे विचार हों, आइडियल हों, जो हर एक जगह कुछ चीज़ें हमें सिखा रही हो। सिक्स स्टेंजा के अंतर्गत वो हम लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लीड माय कंट्री अवेक। वो ये चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कवि कहना चाह रहे हैं कि जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, उसके जो विचार हैं वो गुलामी जैसे हैं, उससे हम अलग हों, एक स्वतंत्र देश का इन्वायरमेंट हो और स्वतंत्रता से ही स्वर्ग की कामना हम कर सकते हैं। उस देश की कल्पना करना चाहते हैं जहाँ किसी तरह के नैरो डोमेस्टिक वार्स न हो। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड 3C पर डिवाइड है, कास्ट, कलर, क्रीड, और जो प्रगतिशील इंसान C के बाद D सीख जाता है, D फॉर डेवलपमेंट, वो इस देश को हमेशा आगे करता है और वो इतिहास पुरुष बनता है। इसलिए नैरो जो डोमेस्टिक वाल्स है उससे अपने देश को वो ऊपर ले जाने की तन्मयता है और पूरे देशवासियों के साथ ये कल्पना करते हैं कि हम उस देश को निर्माण कर पाएँ। एक विचार जो मेरी माता श्री अक्सर देती रहती हैं, आज भी दे रही थी, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है, निष्ठा लौटाई जाती है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसको हम लोग अब समराइज करते हैं, संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि अपने राष्ट्र के लिए एक आदर्श सामाजिकता और नैतिक व्यवस्था का वो स्वप्न स्थापित करना चाहता है। कविता ईश्वर, गॉड, अल्लाह ताला के प्रति एक प्रार्थना के रूप में रचित है, लिखी गई है। कवि प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी बोल्ड होकर, निर्भय होकर रहें और स्वतंत्र परिवेश में ज्ञानार्जन और ज्ञान का वो प्रचार प्रसार करते रहें। कवि चाहता है कि उसका जो देश है वो छोटे छोटे संकीर्ण घरेलू दीवारों से खंडित बिल्कुल ना हो। दूसरे शब्दों में उसके देशवासी स्नेह और पारस्परिक संबंध के साथ जुड़े। एक आदर्श समाज राष्ट्र में लोग एक समझदारी के साथ जुड़ते रहें और सत्यवादी सत्याचरण को स्थापित करें और कठिनता के साथ श्रम करते हुए आगे बढ़ते जाएं। स्वतंत्र चिंतन के बहुत सारे जो दुश्मन हैं उससे वो ऊपर उठे। एक आदर्श समाज में विवेक और चिंताशीलता वो दिखनी चाहिए, गुलामी की जंजीरों से वो बिल्कुल अलग रहें। देश में स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित हमारे देशवासी न हों। कवि टैगोर ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वे देशवासियों के सच्चे विचार और
कार्यों की रहनुमाई करें, मतलब एक एम्पायर की कल्पना करते हैं जो हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करे। यदि वैसे एम्पायर हमारे पास होंगे, वैसे विचारधाराएं हमारे पास होंगी, तो उस राष्ट्र के विकास को कोई नहीं रोक सकता। चलते चलते कुछ चीज़ें जो मैंने बचपन से सीखी हैं, मेरे गुरुजी के अनुसार देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। इस लेसन की समाप्ति के पूर्व मैं अपनी एक छोटी सी विचार आपसे साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अपशब्द एक भयंकर चिंगारी है। अपशब्द एक भयंकर चिंगारी है जो कान में नहीं, मन में जाकर आग लगाती है। ऐसी कुंठित विचारधारा से निश्चित रूप से मैं दूर होकर के एक स्वतंत्र विचारधारा वाले देश को हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय